Hello students. Today I am going to complete the miscellaneous exercise of the topic sequence and series. In previous lecture we have taken some examples from the same exercise, miscellaneous exercise. So this is example number 25 of that exercise. Read this example, very simple example. If for a GP, geometric progression, first term is given, seventh term is given. कॉमन एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर 27 स्कोर एंड 8 स्कोर ऐसा एग्जाम्पल दिया. जैसे कि हमने एक्सरसाइज में ऐसे एग्जाम्पल देखे नहीं है, हमने नंबर देखे, ऐसा स्क्वायर क्यूब फॉर्म में नहीं देखे. सो दैट्स वाई मैं ये सॉल्व करके दे रहा हूँ. फर्स्ट टर्म एंड सेवंथ टर्म इज गिवन. सो रीड द क्वेश्चन एंड राइट द सॉल्यूशन. सो फर्स्ट राइट गिवन फॉर अ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. A is first term and R is common ratio of GP. Therefore, so यहाँ पर लिखेंगे गिवन. अब गिवन क्या दिया है? फर्स्ट टर्म दी है 27 स्क्वायर, seventh term T7 how much? 8 square. T7 means what? A into R raised to 6 is equal to 8 square. The nth term for GP का formula क्या है? A into R raised to n minus 1. A into R raised to n minus 1, that is the formula for the nth term of geometric progression. So sixth term A into R raised to 5, seventh term A into R raised to 6, ninth term A into R raised to 8. जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसा होता है? सेवंथ टर्म A plus 6D, फिफ्थ टर्म A plus 4D, एट्थ टर्म A plus 7D. वैसे जीपी में ऐसा है. So A is given, that is 27 square. So therefore it is 27 square into R raised to 6 is equal to 8 square. Therefore R raised to 6 is equal to 8 square divided by 27 square. R raised to 6 is equal to 8 square divided by 27 square. So R raised to 6 is 8 means 2 cube. 27 means 3 cube. Whole square. A whole square है. So R raised to 6 is equal to 2 by 3. 3 into 2 is 6. R raised to 6 is 2 by 3. Therefore R is equal to what? 2 by 3. This R is less than 1. Because we have to find the sum of 8th term, and sum of GP absolutely depends on the term of R, either greater than 1 or less than 1. But this is a less than 1. So that's why we know that for SN, A into 1 minus R raised to n upon 1 minus R. So here yes 8 फाइंड करना है हमें. ये कितना है? 27 स्क्वायर है. 1 माइनस R कितना है? 2 by 3 raised to n upon 1 minus 2 by 3. 27 square is 729. That is 27 square. In bracket 1 minus 2 by 3 raised to n divided by 3 minus 2 is 1 by 3. So 729 into 3 into 1 minus 2 by 3 raised to n. This is S8. So this will be 3 9s are 27, 6, 8, 2187. 1 minus 2 by 3 raised to n. This is answer of S8. Okay. So ये उसका आंसर है. कॉमन एग्जाम्पल था, सॉल्व करने का पर्पज यही था कि यहाँ पर A is a 27 square and S7 is 8 square. That's why मैंने सॉल्व करके दिया. This is the answer of S8. Okay. So we'll take next example. Next example, pth term, qth term, rth term of GP are given x, y, z. That is pth term,
rth term and qth term, rth term are given, which are x, y, z respectively. Now we have to find the value of this. So common example है, इसे कहते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि हमारा रेगुलर एग्जाम्पल के जैसे नहीं होते, थोड़े ट्विस्ट करके देते हैं, थोड़ा कुछ तो अलग उसमें कंटेंट होता है. सो हमने nth टर्म देखा है, rth टर्म देखा है, लेकिन pth टर्म, qth टर्म ये ऐसा नहीं आया. सो लेट अस कंसीडर, लेट A be the first term, capital R be the कॉमन रेशियो. जनरली मैंने अब तक कॉमन रेशियो स्मॉल r लिया था और फर्स्ट टर्म स्मॉल a लिया. यहाँ पर कैपिटल क्यों लिया? बिकॉज हियर इज ऑलरेडी दिस लेटर इज यूज, rth टर्म इज यूज, दैट्स वाई कंसिडर कैपिटल लेटर्स फॉर द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो. सो हियर रेशियो ऑफ GP. सो वी नो दैट the nth term of AP, GP, A into R raised to n minus 1. Therefore, given TP is equal to X, TQ is equal to Y, TR is equal to Z. TP means A into R raised to P minus 1 is X. TQ A into R raised to Q minus 1 which is Y, and TR A into R raised to R raised to R minus 1 is equal to what? Z. ये given data है. TP means pth term, TQ means qth term, and TR means rth term. Here we write capital A is the first term and the common ratio is capital R. So let us write here what we have to find here. We have to find the value of this. So therefore, x raised to q minus r, y raised to r minus p, and z raised to p minus q is equal to, हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करना है. अब देखो ये x हमें पता है क्या है, दिस इज x, a into r raised to p minus 1 raised to q minus r, a into r raised to q minus 1, this is y raised to r minus p, into a into r raised to r minus 1 raised to p minus q. x, y, z, this is pth term, qth term, rth term, मैंने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस की है. सो यहाँ पर ये हमारा रूल है, फॉर्मूला है, पावर एंड इंडाइसेस का. a इंटू बी रेस टू m असेल, सो दैट इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू b रेस टू m. लॉज ऑफ पावर एंड इंडाइसेस. सो टेकिंग इस पावर, दिस a रेस टू q माइनस r रेस टू p माइनस 1 q माइनस r, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. ये भी रूल है, a रेस टू m रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n. तो 7th स्टैंडर्ड का जो बेसिक मैथमेटिक्स से फंडामेंटल मैथमेटिक्स ये है, पावर का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. सो ये दो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. सिमिलर फॉर द रेस्ट, a रेस टू r माइनस p, r रेस टू q माइनस 1 r माइनस p, a रेस टू p माइनस q, r रेस टू r माइनस 1 p माइनस q. बस इसको अब सॉल्व करना है. बेस ये है, वी कैन ऐड द पावर. ये रूल है वैसा, a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m प्लस a. अगर बेस सारे सेम है, उसकी पावर की क्या होती है? एडिशन होती है, m प्लस n होता है. इस सब के एडिशन हो जाएंगे. देयरफॉर a टू द पावर q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q इंटू r रेस टू, ये सब r की जो भी पावर है उसकी भी एडिशन हो जाएंगे. r r r
मल्टीप्लाई करेंगे और सबको ऐड करेंगे, p इंटू 1 पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू माइनस इंटू माइनस प्लस आर, इसकी मल्टीप्लीकेशन क्यू आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन एडिशन पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, राइट। अब देखो कितना आता है आंसर, ये सब इक्वल टू है, वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, प्लस क्यू माइनस आर माइनस पी कैंसल, प्लस माइनस बिकम 0, प्लस 1 माइनस 1 0, राइट, इनटू प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, every term cancel, so it is a r raised to 0, so any number raised to 0 is 1, any number raised to 0 is 1, what is the value of this is what 1, so इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 1 आ जाएंगी। थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है बिकॉज हियर ही हैज गिवन p th term, q th term and r th term which is x and y and z, so this is the solution, okay, so we'll take next after this. Let us take example number 28. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल सीईटी में आते हैं, सीईटी जेडबल मेन में ये सारे एग्जाम्पल आते हैं। सो हियर दिस टू पार्ट्स आर गिवन, पी क्यू आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड दिस थ्री टर्म्स आर इक्वल एंड व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, हमें वेरीफाई करना है कि एक्स वाई जेड एपी में है या जीपी में है या इस दोनों में कुछ भी नहीं है। एपी में क्या रहता है, एपी कौन सी टर्म होती है, b is equal to a plus c by 2, gp means what, b square is equal to ac, okay, अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। so given these two terms are in gp, pqr are in gp, therefore ratio constant q by p is equal to r by q, therefore q square is equal to what, pr, equation first. These three terms are gp means q square is equal to pr, and next these three terms are equal, p raised to 1 by x, q raised to 1 by y and r raised to 1 by z. These three terms are equal by principle of equality. ये ऐसा रहता है, देखो a is equal to b is equal to c का मतलब क्या होता है, a is equal to b and b is equal to what, c, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है। If three terms are equal, a is equal to b is equal to c, it means what, a is equal to b and obviously b is equal to what, c, so वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, p raised to 1 by x is equal to q raised to 1 by y and r raised to 1 by z is equal to q raised to 1 by y is equal to r raised to what, 1 by z। यहाँ पर हमने पी आर फाइंड करना है, सो व्हाट विल बी हियर p, ये 1 by x इधर ट्रांसफर हो जाएगा, q रेस्ट ऊपर जाएगा, x by y हो जाएगा, यहाँ पर r फाइंड करेंगे, ये z ऊपर जाएगा, q रेस्ट टू z by y, यहाँ से p फाइंड किया मैंने, 1 by x था, ट्रांसफर करो पावर, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 by x का रेसिप्रोकल x ऊपर x जाएगा, x by y हो गया। r की वैल्यू फाइंड की मैंने, ये z ऊपर गया, z by y, सो p एंड r यू क्यों फाइंड किया, बिकॉज ये राइट साइड में p आ रहे हैं, सो ये दो टर्म मिल गई, देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स व्हाट, इक्वेशन फर्स्ट, q square is equal to pr, q raised to x by y into q raised to z by y। सो राइट हैंड साइड में बेस सेम है, पावर की एडिशन हो जाएंगी, x by y plus z by y, लेफ्ट हैंड साइड q square,
लेफ्ट साइड से क्यू है, इधर भी क्यू है, पावर इक्वेट हो जाएंगे, देयरफॉर वी राइट y इज इक्वल टू, दोनों का बेस सेम है y, x प्लस जेड, x प्लस जेड बाय वाई, डिनोमिनेटर सेम है, सो क्यू क्यू, सो दिस इज अ पावर इंडाइसेस का रूल, ये a रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू n, देन m इज इक्वल टू व्हाट, n। इस साइड में जो भी लिखता हूँ ना वो भी कॉपी करना है, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल मैथमेटिक्स, वो आ गया तो ये आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आता। ये 7th स्टैंडर्ड में हुआ है, दैट इज द लॉज ऑफ पावर एंड इंडाइसिस, a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, देन ऑब्वियसली a इज इक्वल m इज इक्वल टू व्हाट, n। सो देखो यहाँ पर 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड, 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड, देन व्हाट इज y is equal to x plus z by 2, hence x y z are in AP। ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, if x y z are in AP then y is equal to x plus z by 2, y is equal to x plus z by 2, it means x y z are in AP, right? And GP कब होता है, these 3 numbers are in GP means what, middle term square is equal to P into Q, Q square is equal to P into R, so this is about GP, this is about what, AP। So hence if PQ are in GP then what we get here, X Y Z are in AP, okay। this is, और ये एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल रेगुलर एक्सरसाइज में नहीं थे, ये मिसलेनियस में है, मिसलेनियस मीन्स व्हाट, लिटिल हायर ऑर्डर थिंकिंग, ओके। Let us see the example number 29. This is a completely higher order thinking. It is not a common example. It has not a common logic. It is not a common any technique. A, B, C are in GP. So this is given. Given A, B, C are in GP. ये geometric progression है. So obviously b square is equal to what, AC। अगर b square is equal to AC तो what is value of b, it is root AC, root AC। so therefore ax square is given, ax square plus 2bx plus c is equal to 0, this is a quadratic equation, we can replace by b by this, so therefore ax square plus 2b, b is what, root AC, x plus c is equal to 0, plus c is equal to 0, so this becomes a complete square। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट a होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस रूट AC x प्लस रूट c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। C means what, root c square, A means what, root a square, so this is a complete square of what, root a x plus root c whole square is equal to 0। अब a plus b whole square से सॉल्व करके देखो, डेफिनेटली बन जाएगा a plus b whole square, a square इसका स्क्वायर a डबल 2 root a root c x plus root c square is c, okay। so therefore root a x plus root c is equal to 0, square root निकाल दिया, so therefore we can write root a x is equal to minus root c, so what is the value of x, minus root c by a, this is the value of x। One more thing he has given, this quadratic equation and this quadratic equation has common roots, so this is given ax square plus 2bx plus c is equal to 0 and px square plus 2qx plus r is equal to 0 has इक्वल रूट्स, कॉमन रूट्स, इन दोनों में कॉमन रूट्स हैं, देयरफॉर x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे,
Therefore, x is equal to root minus c by a. Satisfies क्या is a root of this equation. Root means this is the value of x. So x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. So therefore it is p x square, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा c by a. X is what? Minus root c by a. It is minus becomes here minus root c by a plus r is equal to 0. राइट हमें ये वेरीफाई करना है. देखो इट इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. नाउ इट इज अ पीसी बाय माइनस 2q रूट सी बाय रूट ए प्लस आर इज इक्वल टू 0. अब यहां पर एलसीएम क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा. ए इज एलसीएम. पीसी रूट क्यू रूट सी ए बाय रूट ए इज रूट ए प्लस आर ए इज इक्वल टू व्हाट? 0. सो नाउ दिस बिकम्स PC minus 2q root AC plus RA is equal to 0. A into 0 is 0. Is it clear? ये इसका LCM लिया. LCM मीन्स क्या? सबको A से मल्टीप्लाई किया, इसको A से मल्टीप्लाई किया, इसको A से मल्टीप्लाई किया, इसको A से मल्टीप्लाई किया, और इसको A से मल्टीप्लाई किया. ये क्या हो जाएगा? कट ओनली व्हाट? PC. इसको A से मल्टीप्लाई किया तो A बाय रूट ए इज व्हाट? रूट ए. इसको A से मल्टीप्लाई किया इज A. That is 0. This is called as LCM method. अब देखो यहाँ पर ये आ रहा है. So B is equal to कितना है? रूट AC है. B is equal to what? रूट AC. और C की वैल्यू कितनी है? अगर B स्क्वायर इज इक्वल टू AC है, so B is equal to what? रूट AC. राइट. B is equal to रूट AC. यहाँ से C की वैल्यू कितनी बन जाएंगी? C is equal to what? B स्क्वायर बाय A. तो C की वैल्यू B स्क्वायर बाय ए और B की वैल्यू रूट ए सी यहाँ पर पुट करेंगे. देयरफॉर हम इसको इक्वेशन सेकंड करेंगे. सो P C मीन्स व्हाट? B स्क्वायर बाय ए. रूट ए सी मीन्स व्हाट? B प्लस आर ए इज इक्वल टू व्हाट? 0. अब सबको A से मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर PB स्क्वायर माइनस 2QAB प्लस RA स्क्वायर इज इक्वल टू 0. PB स्क्वायर माइनस 2QBA सेम प्लस RA स्क्वायर इज इक्वल टू 0. हेंस वेरीफाइड. और दिस इज अ कंडीशन. हेंस वेरीफाइड, दिस इज अ कंडीशन. So once again I repeat the example. Here are these two conditions are there given. A, B, C are in GP. A, B, C are in GP means B square is equal to AC. B is equal to root AC. These two equations have common roots. ये भी दिया है. This equation and this equation has common roots. So ये जो B की वैल्यू रूट AC आ गई, so मैंने यहाँ पर पुट की फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसको सॉल्व किया. ये उसका सॉल्यूशन x की वैल्यू बन गई. अगर x की वैल्यू तो ये इट मीन्स दिस इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन. ये रूट इस इक्वेशन के क्या है? रूट है. सो वही रूट इस इक्वेशन के होगा बिकॉज ही हैज गिवन हैव कॉमन रूट्स. सो सेम x की वैल्यू माइनस रूट सी बाय रूट ए पुट इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट. जितना आगे सॉल्व करके जाओगे यहाँ पर दिस इज अ गिवन पार्ट है. सो वही रिप्लेस किया, यू विल गेट दिस इक्वेशन एंड हेंस वी से दैट डायरेक्टली दिस इज अ वेरीफाइड और हेंस वेरीफाइड और दिस इज अ कंडीशन. सो बड़ा सोल्यूशन है, थोड़ा क्रिटिकल है. रिपीट इसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा. सबसे इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन का जो पार्ट है ये आना चाहिए. ओके, सो विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 30.
बहुत सारे एग्जाम्पल वो क्रिटिकल लेवल के एग्जाम्पल है. सो ये भी ऐसा एग्जाम्पल है. 4 numbers आर गिवन इन जीपी. वी हैव टू प्रूव दिस. यानी प्रूव करना है. प्रूव करना मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो लेट अस सी हियर गिवन. उसके पहले लिखेंगे कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. सो यहां पर भी कैपिटल आर क्यों लिया मैंने यहां पर, बिकॉज स्मॉल लेटर इज ऑलरेडी यूज हियर. सो वी कंसीडर कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. सो दिस इज नाउ गिवन. व्हाट इज गिवन? पी क्यू आर एस आर इन जीपी. अगर 3 ही नंबर रहते, 3 ही पी क्यू आर, तो हम क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू लिखते थे. बट यहाँ पर ही हैज गिवन 4 numbers पी क्यू आर एस आर इन जीपी. सो देयर पी तो पहली टर्म है. पी इज द फर्स्ट टर्म. व्हाट इज क्यू? पी आर. व्हाट इज आर? पी आर स्क्वायर. व्हाट इज एस? पी आर क्यूब. R is ratio. First term is A, second term is AR, third term is AR square, fourth term is AR cube. This is the fourth term, PR cube. Third term, PR square. Second term, PR, because P is the first term of GP. Okay, so ये हो गया. So now we consider left hand side. अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं left hand side. बड़ा solution होगा ये भी. ये left hand side. What is left hand side? P square plus Q square plus R square. ये left hand side into Q square plus R square plus S square. So सब वैल्यू है P Q R S. P मालूम है, Q मालूम है, R मालूम है, S वहाँ पर रखना है सिर्फ. P square as it is. Q square P square R square. R square P square. R square means what? P square R raised to 4. P Q R मालूम है हमें. अभी Q square. Q square means what? P square R square. R square P square R raised to 4. S square इसका स्क्वायर करना है. P square R raised to 6. ओके. नाउ यहां से पी स्क्वायर कॉमन लेता हूं मैं. इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4. फ्रॉम द सेकंड पी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन. पी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन. इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4. कॉमन लेना मीन्स व्हाट? वो डिवाइड करना वो टर्म्स. यहाँ से पी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बन गया 1. यहाँ से पी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो पी स्क्वायर तो गया, सिर्फ आर स्क्वायर रह जाएगा. यहाँ पे आर 4 रेस टू 4 रहेगा. आर स्क्वायर कॉमन लिया है, आर रेस टू 6 में से आर स्क्वायर कॉमन लिया मीन्स आर रेस टू 4 रिमेन देगा. सो दिस टर्म एंड दिस टर्म सेम, दैट्स व्हाई इज होल स्क्वायर. 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 होल स्क्वायर. एंड ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन पी स्क्वायर पी रेस टू 4 एंड आर स्क्वायर. दिस इक्वेशन फर्स्ट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. अब हमें राइट हैंड साइड देखना है. नाउ राइट हैंड साइड आर एच एस पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस होल स्क्वायर. पी क्यू, पी तो एज इट इज. क्यू मीन्स व्हाट? पी आर. क्यू इज व्हाट? पी आर. पी आर स्क्वायर. आर पी आर क्यूब. यस पी आर क्यूब. यस मीन्स व्हाट? पी आर क्यूब. आर मीन्स व्हाट? पी आर स्क्वायर whole square. So what is this? P square R. P square R cube plus P square R raised to 5 whole square.
r raised to 5 whole square. So here this is equal to p square r कॉमन लेंगे, p square r कॉमन इन ब्रैकेट 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r क्यूब. यहां से p स्क्वायर r कॉमन लिया तो यहां पर r raised to 4 बन जाएगा, r a whole square as it is. ओके. नाउ टेकिंग इंडिविजुअल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, बिकॉज इंडिविजुअल स्क्वायर कर सकते हैं हम. सो इट इज अ p raised to 4 r स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r raised to 4 होल स्क्वायर. इट इज इक्वेशन सेकंड. देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन एब्सोल्युटली सेम है. सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. सिर्फ ये क्या है, कैलकुलेशन का पार्ट है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है. सिर्फ 4 नंबर है, पहला नंबर p है, दूसरा q है, तीसरा r है, चौथा s है, सेकंड नंबर pr, थर्ड नंबर pr स्क्वायर, फोर्थ नंबर pr क्यूब. लेफ्ट हैंड साइड में रखो, राइट हैंड साइड में रखो, सॉल्व करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन. ओके, दिस इज एग्जांपल नंबर 30. नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले मैं एक कंसेप्ट पढ़ाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द पावर सीरीज. सो लुक एट द कंसेप्ट पावर सीरीज. सो पावर सीरीज किसे कहते हैं? सम फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस एज the infinite sum of power of x, that is called as the power series. So I will write the definition. Power series: some functions can be expressed as the infinite sum of powers of x is called power series. कुछ फंक्शंस है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन. So this is exponential series. First is exponential series. अब जो भी नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस एंड रिलेशंस, सेट रिलेशन फंक्शन, उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ये डिटेल में पढ़ा जाएगा. लेकिन इन शॉर्ट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या होती है? ये 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल. ये भी नई कंसेप्ट है. फैक्टोरियल किसे कहते हैं वो भी मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूं. एक्स रेज टू n अपॉन n फैक्टोरियल. दिस एक्सप्लेनेटरी मार्क दैट इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल. फैक्टोरियल. अभी फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल किसे कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ numbers up to n, product of natural numbers up to n, that is called as n factorial. 1 into 2 into 3 into 4 into ये कहाँ तक? n तक. This multiplication, this product is called as what? n factorial. The product of first n natural number, that is called as n factorial, and this is a symbol of factorial. Is it clear? So in short, 3 factorial किसे कहेंगे हम? 1 into 2 into 3. 4 फैक्टोरियल किसे कहेंगे? 1 into 2 into 3 into 4. 2 फैक्टोरियल किसे कहेंगे? 1 into 2. 1 फैक्टोरियल किसे कहेंगे? 1 को. So this fact explanatory mark is a symbol which is applied for the, which is used for the factorial notation. Factorial means it is a product of first n natural number. So that is n factorial. Okay. So power series किसे कहते हैं? Some functions can be expressed as the infinite sum of power of x is called the power series. ये देखो
1 plus x upon 1 factorial x square by 2 factorial x cube by 3 factorial x raised to 4 by 4 factorial is called exponential series, and which is divided by e raised to x. अब ये e क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है. अब बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके मैं. एक इरेशनल नंबर है, उसकी वैल्यू 3 और 2 के बीच में है. ग्रेटर दैन 2 है और लेस दैन 3 है. उसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, दैट इज 2.7182. जैसे पाई की वैल्यू 3.14 है, वैसे √2 की वैल्यू 1.414 है, √3 की वैल्यू 1.732 है. वैसे एक इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर. उसकी वैल्यू 2.718283 होती है. वैसे ये e raised to x है. E is a letter but it is a symbol. एक्सपोनेंशियल का सिंबल है e raised to x. सो एक्सपोनेंशियल सीरीज ऐसी बन जाएंगी 1 plus x upon 1 factorial, x square by 2 factorial, x cube by 3 factorial, x raised to 4 by 4 factorial, up to dash x raised to n by n factorial. And this is a exponential series. x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया तो दैट बिकम्स 1 minus x upon 1 factorial, x square by 2 factorial, बिकॉज माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है. ऑड पावर बिकम्स निगेटिव, इवन पावर बिकम्स पॉजिटिव, सो ऑन x raised to n by n factorial. अगर यहाँ पर 1 रिप्लेस करना है तो 1 upon 1 factorial, 1 upon 2 factorial, 1 upon 3 factorial, 1 upon 4 factorial. So it is e raised to 1. 1 plus 1 upon 1 factorial, 1 square upon 2 factorial, 1 cube upon 3 factorial, 4 raised to 4 upon 4 factorial. It is so on 1 upon n factorial. कौन सी भी ई स्क्वायर फाइंड कर सकते, ई क्यूब फाइंड कर सकते. सिर्फ आप यहाँ पर x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया, 1 रिप्लेस किया, ऐसा 2 रिप्लेस करो, 3 रिप्लेस करो, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपोनेंशियल सीरीज. एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज इज अ पार्ट ऑफ पावर सीरीज. व्हाट इज पावर सीरीज? सम फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस एज द इनफाइनाइट सम ऑफ पावर ऑफ x. दिस इज इनफाइनाइट सम ऑफ पावर ऑफ x. Infinite sum of power of x. So that is called as what? Power series. This is called as what? Power series. Right? उसमें से एक कौन सा है? एक्सपोनेंशियल सीरीज. एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं? इस नंबर को कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर. अभी ये ई क्या है? इट इज नॉट जस्ट लाइक ए बी सी डी ई. ई वो नहीं है. ई इज अ सिंबल विच इज एक्सपोनेंशियल. जैसे इरेशनल नंबर होता है. इरेशनल नंबर मीन्स व्हाट? विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग. दैट नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? इरेशनल नंबर. सो इसकी वैल्यू क्या है? 3 और 2 के बीच में, लेस देन 3 है, ग्रेटर देन 2 है. उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये है, विच इज वेरी नियरेस्ट एक्यूरेट. राइट. सो ये जो 1 एक्सप्लेनेटरी मार्क, 2 एक्सप्लेनेटरी मार्क, 3 एक्सप्लेनेटरी मार्क, 4 एक्सप्लेनेटरी मार्क, ये जो एक्सप्लेनेटरी मार्क है दैट इज फैक्टोरियल. व्हाट इज एक्चुअल फैक्टोरियल? दिस इज फैक्टोरियल. n factorial means what? 1 2 3 4 up to n. That multiplication is a factorial. That is a product. ये एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गई. इसके बाद एक लॉगरिथमिक सीरीज भी है. इसके बाद मैं लेता हूँ लॉगरिथमिक सीरीज. ओके. After this logarithmic exponential series, this is logarithmic series. This series is what? For modulus x less than 1. The series x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 is called logarithmic series. Which is denoted by log of 1 plus x. Therefore
logarithm of 1 plus x is equal to x square by 2, x cube by 3 minus x raised to 4 by 4, so on. So this is what logarithmic series, right? ऐसे साइन की सीरीज है, साइन एक्स की सीरीज है, कॉस एक्स की सीरीज है, बहुत सारी सीरीज है. सो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये लॉगरिथमिक सीरीज, दिस इज अ पार्ट ऑफ पावर सीरीज. पावर सीरीज मीन्स व्हाट? सम फंक्शंस कैन बी एक्सप्रेस एज द इनफाइनाइट सम ऑफ पावर ऑफ एक्स इज कॉल्ड व्हाट? पावर सीरीज. सो इनफाइनाइट सम ऑफ पावर ऑफ एक्स, इनफाइनाइट है ये पावर ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इधर इवन पावर निगेटिव, ऑड पावर पॉजिटिव, ऑड पावर पॉजिटिव, इवन पावर कैसे निगेटिव. ये लॉगरिथमिक सीरीज है, ये कौन सी है? एक्सपोनेंशियल सीरीज. इज इट क्लियर? सो दिस ऑल अबाउट पावर सीरीज. सो यहाँ पर एक एग्जांपल है मिसलेनियस में, वो मैं लूंगा यहाँ पर इसके बाद. ओके, सो एग्जांपल नंबर 32, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 6. x रेज़ टू 6 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है. विच एक्सपांशन ऑफ e टू द पावर 2x. हमें e रेज़ टू x के एक्सपोनेंशियल एक सीरीज मालूम है. सो वी नो दैट exponential series what e raised to x is equal to 1 x upon 1 factorial, x square upon 2 factorial, x cube upon 3 factorial, x raised to 4 upon 4 factorial and so on, x raised to n upon n factorial. और इसके आगे भी टर्म सीरीज हो सकती है. सो x की जगह पर क्या है? 2x है. सो सिर्फ रिप्लेस करना है. रिप्लेसिंग x by 2x, e raised to 2x, 1 plus 2x upon 1 factorial, 2x square upon 2 factorial, 2x cube upon 3 factorial, 2x raised to 4 upon 4 factorial, 2x raised to 5 upon 5 factorial, 2x raised to 6 upon 6 factorial and so on. मैंने और दो टर्म एक्सटेंड क्यों किया? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 6. x raised to 6 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है. सो देयरफॉर दिस बिकम्स e raised to 2x is equal to, so 1 plus 2x upon 1 factorial, 2 square x square upon 2 factorial, 2 cube x cube divided by 3 factorial, and I say 2 raised to 6 x raised to 6 upon 6 factorial and so on. 2 raised to 6 x raised to 6 upon 6 factorial. So इसका कोएफिशिएंट ये है. So therefore the coefficient of x raised to 6 is 2 raised to 6 upon 6 factorial. ये उसका आंसर है कि इसका हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 raised to 6 upon what? 6 factorial. So 2 raised to 6 is what? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. It is 6 times. That is 2 raised to 6. 6 factorial means 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6. That is called as 6 factorial. 2 into 2 4 cancel. और एक 2 cancel. 2 3s are 6 cancel. 2 into 2 4. 3 into 3 9. 9 5s are 45. So this is answer. Okay, so what is the coefficient of x raised to 6? That is 4 upon 45. This is all about miscellaneous exercise. जो मैंने एग्जाम्पल स्किप किए हैं मीन्स दैट यू कैन सॉल्व डेफिनेटली, ये मुझे कॉन्फिडेंस है. जो थोड़े क्रिटिकल कंडीशन के थे, थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग के थे, वो मैंने ऑलमोस्ट सब सॉल्व करके दिए. ओके, सो इसमें जो भी एग्जाम्पल्स मैंने छोड़ दिए, स्किप किए, आप उसको ट्राई करो.
कोशिश करो, और कोई भी डिफिकल्टी हो तो मुझे फोटो निकाल के सेंड करो. आई विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ दैट एग्जांपल. सो हियर आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट sequence and series is 100% completed with all exercise including miscellaneous. Okay, so today we'll stop here. So thank you very much. On next video lecture we'll start the third topic that will be different of that complex number and sequence and series. So हमारे दो टॉपिक हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सीक्वेंस एंड सीरीज. पूरी अच्छी पढ़ाई करो, कुछ डिफिकल्टी हो तो शेयर करो, विल गेट द सॉल्यूशन. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.